نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. محترم سامعین اکرام، یہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی. اس آیت کا انتخاب جو کیا گیا وہ اس بات پر کیا گیا، آج جو ہمیں بات کرنی تھی اس کا عنوان تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام حضرات انسانوں میں سے تھے. بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ انسانی مخلوق نہیں، ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. بعض لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، جبکہ یہ خالص شرک عقیدہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہو، وہ تمام کے تمام انسان تھے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے اول نبی میں سے ہیں، وہ انسانوں میں سے تھے، انہی کی اولاد میں سے ہم ہیں. پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام. ان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے تو واقعات مشہور ہیں. ان تمام واقعات سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں میں سے ہی تھے، نور نہیں تھے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں یا اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں، یہ بالکل قرآن کے خلاف ایک عقیدہ ہے، خالصتاً شرک عقیدہ ہے، اور قرآن مقدس کی بے شمار آیات کا انکار ہے اس میں. قل انما انا بشر مثلکم، یہ جو آیت ہے، اس آیت کریمہ کے اندر تو بالکل صاف اور شفاف الفاظ میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. قل انما انا بشر مثلکم، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں جیسے تم. مثلکم، جیسے تم انسان ہو ویسے ہی میں بھی ایک انسان ہوں. جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے اس طرح مجھے بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تم سب کو نیند آتی ہے اسی طرح مجھے بھی نیند آتی ہے. جس طرح تم بیمار ہو سکتے ہو اسی طرح میں بھی بیمار ہو سکتا ہوں. مثلکم، جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں. اور بھی بے شمار آیات قرآن مقدس کی اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام انسان تھے. اب میں قرآن مقدس کی دو چار آیات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. اس سے پہلے کچھ عقلی دلائل جو عام آدمی کے بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے. آپ کا یوم ولادت بھی منایا جاتا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی مخلوق اگر نور ہو، کوئی شخص اگر نور ہو تو اس کی ولادت ہوتی ہے؟ اس طرح ولادت جس طرح انسانوں کی ولادت ہوتی ہے.
حضرت جبریل امین अलैहिस्सलात वस्सलाम हो या हजरत इसराफील अलैहिस्सलात वस्सलाम हो या और कोई फरिश्ता हो, उनमें से कोई एक फरिश्ते का नाम नहीं बता सकता कि जिस फरिश्ते की इस तरह विलादत हुई हो, या कोई फरिश्ता ऐसा हो कि उसके माँ बाप का नाम हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के नाम आप सुनते रहते हैं, और जो लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है, उनको अगर उनसे ये मालूम किया जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के नाम जो है वो बताइए, तो वो नाम उनको याद होते हैं। यानी उनका एक तरफ अकीदा यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माँ बाप थे, दादा दादी थी, और एक तरफ अकीदा यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है। याद रखना, नूर जो होता है उसकी इस तरह विलादत नहीं होती है जिस तरह इंसानों की विलादत होती है। नूर एक अल्लाह की मखलूक है अलग, उसमें ना मर्द होते हैं और ना औरतें होती हैं। नूर एक अलग मखलूक है। जिस तरह फरिश्ते हैं, फरिश्ते नूर के बनाए गए हैं, उनमें ना कोई मर्द होता है ना कोई औरतें होती हैं, वो एक अलग मखलूक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादियां हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद भी हुई, ये इस बात की शहादत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे। अच्छा, बाज़ लोगों का अकीदा यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर से इंसान थे, अंदर से नूर। ये भी एक खुद साख्ता अकीदा है, इसका भी कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना नहीं। न कुरान मुकद्दस में कोई ऐसी आयत मौजूद है कि उसके अंदर ये बात मौजूद हो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या और कोई पैगंबर ऊपर ऊपर से इंसान हो, अंदर से नूर। इसलिए ये भी एक बातिल और खुद साख्ता अकीदा है, इसका इस्लाम से, शरीयत से, कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी चीज, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हादसात हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, जो गज़वात हुए, उन गज़वात में जो आपको तकलीफें हुई, आपके दांत मुबारक शहीद हुए, वो भी इस बात की शहादत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे। अब मैं कुछ आयत आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो समाअत फरमाएं। फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसे हमने तुम्हारे दरमियान एक रसूल भेजा, मिनकुम तुम में से। मिनकुम ये बता रहा है तुम में से। अब हम कौन है? ये जो उस वक्त के जो लोग थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के जो लोग थे, उनसे ये बात हो रही है कि तुम में से। वो तो सब के सब इंसान थे, अब तुम में से अगर हम ये मान लें कि वो तो सारे के सारे इंसान थे लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर थे, तो ये तो अकीदा इस आयत के खिलाफ है। इस आयत के अंदर साफ लफ्ज मौजूद है, मिनकुम तुम में से। अगली आयत, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह का एहसान है ईमान वालों पर, अलल मुमिनीन ईमान वालों पर, इज़ बअस फीहिम जबकि उसने भेजा तुम्हारे तुम्हारे अंदर, मिन अनफुसिहिम यानी मिन जिनसिहिम, मिन अनफुसिहिम तुम ही में से, मिन अनफुसिहिम यानी मिन जिनसिहिम, जिस तरह तुम इंसान हो उसी तरह बिल्कुल एक इंसान ही नबी तुम्हारे अंदर भेजा गया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आगे पूरी तफसील मौजूद है। ये आयात वो है जो आप किसी भी
तर्जुमे वाले कुरान मुकद्दस में देख सकते हैं। देवबंदी हो, बरेलवी, अहले हदीस, जो जिस मसलक का हो वो अपने अपने मसलक में इसको देख सकता है। इसमें कोई एक तफसीर कोई खास नहीं है। ये तो आयात वो आयात हैं जो बिल्कुल वजाहत के साथ इस बात को बता रही हैं। और एक जगह फरमाया, कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, सुबहान रब्बी, मेरा रब हर शरीकों से पाक है, हर किस्म के शरीकों से पाक है। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो एक इंसान रसूल हूँ। इल्ला बशरर रसूला, मैं एक इंसान रसूल हूँ। अब इससे ज्यादा साफ और शफाफ कौन सी बात हो सकती है? अब अगर इसके खिलाफ कोई अकीदा रखा जाए तो कुरान मुकद्दस की इस आयत की तहरीफ होगी या बिल्कुल इनकार होगा। बिल्कुल साफ लफ्ज मौजूद है, इल्ला बशरर रसूला। और मकाम पर भी आयत मौजूद है। जो मैंने आयत आपको सबसे पहले खुतबे में सुनाई थी वो ये थी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप फरमा दीजिए कि मैं तुम ही जैसा एक इंसान हूं। बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम ही जैसा एक इंसान हूं, यानी इंसान होने में मेरे और आप में कोई फर्क नहीं। यूहा इलैया, ये वो बात अलग है कि मेरे ऊपर वही आती है और आपके ऊपर नहीं आती। यूहा इलैया, ये फर्क होता है आम आदमी के अंदर, आम ईमान वालों में, और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में। ये फर्क होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पास अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात आते हैं, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन अहकामात को अपनी उम्मत को बताते हैं। बाकी इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं होता। इंसानों को भूख लगती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भूख लगती थी। उसी तरीके से नींद आना, अब नींद आना, इंसानों को नींद आती है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नींद आती थी। बीमारी का आना, नींद का आना, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल इस बात पर शाहिद हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे। और बहुत सारी आयात और अहादीस मौजूद हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं मुख्तसर अर्ज किए देता हूं। बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं, आम आदमी जो कुरान मुकद्दस की आयात को ज्यादा नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ आयात इस तरह की, उनके अल्फाज इतने साफ और शफाफ होते हैं, इतने मुहकम अल्फाज होते हैं कि जो उनके अल्फाज हैं उसी से पूरी बात साबित हो जाती है। इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं, कोई ना समझने वाली बात नहीं। वो चीज अलग है, आदमी हक को समझना ही ना चाहे या सही और गलत को समझना ही ना चाहे तो वो चीज अलग है। बाकी खुलासा मैं आज किए देता हूं, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो या और दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, वो तमाम के तमाम इंसानों में से थे, इंसान ही थे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर पैगंबर के मुताल्लिक हमारा जो अकीदा होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे। और जो इसके खिलाफ अकीदा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर है या अल्लाह के नूर में से एक नूर है, याद रखना, अल्लाह के नूर में से अगर नूर मान लिया जाए तो ये अकीदा खालिसतन शिर्क की अकीदा है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। और अगर सिर्फ वैसे नूर मान लिया जाए तो फिर भी वो कुरान मुकद्दस की मुहकमात का इनकार है, आयत मुहकमात का बिल्कुल इनकार है। जो बिल्कुल साफ और वाज़ेह आयत है बिल्कुल उनका इनकार है। इसलिए अकीदे की इस्लाह कीजिए और बाप दादाओं से जो चीजें सुनते हुए आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। ये तो मुशरिकीन मक्का का रवैया था, उनका ये अकीदा था
وہ ہر بات پر ان کا یہ جواب ہوتا تھا کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے یہی سنتے آئے ہیں، وجدنا علیہ آباءنا الفینا علیہ آباءنا، کہ ہم اپنے باپ داداؤں سے سنتے ہوئے آئے ہیں، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کام میں لگے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہم نے اپنے باپ داداؤں سے یہی چیزیں سنی ہیں، یہی سیکھی ہیں، ہم اس پر رہیں گے۔ یہ بالکل مشرکین مکہ والا رویہ ہے، ان کا والا عقیدہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے اور قرآن و سنت کی طرف آئیے، ضد بازی اور ہٹ دھرمی سے دور رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔